Good morning, students. Today we discuss about the DNA replication. But to understand the DNA replication, first we have to know that what is the DNA and what are doing as the function of an DNA in a cell. So DNA is a long form. We have to know that deoxyribonucleic acid. Such a DNA which can be controls the all the activities which can be carried in a cell, as well as we have to say that the DNA which can be regulates or run all the activities carried in a cell cytoplasm or the cell. Also we have to say that DNA which can be carried the metabolism machinery. हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए पूरे सेल के अंदर चलने वाली जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है उन लाइफ प्रोसेस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं और वो एक तरह की मशीनरी चलाता है। यानी हम जैसे बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो लाइफ प्रोसेसेस चलती है वो कंटिन्यूएशन में चलते रहते, कभी रुकती नहीं है, जैसे मशीन कंटिन्यूएशन में वर्क करती है। सो जस्ट एन अ वर्क एज वर्ड यूज एज टू बी द metabolic machinery. So after that we have to know that DNA is the carrier of the genetic material, as well as DNA only responsible for to carry the characters from one generation to another or transmit the characters from one generation to another. As well as we have to know that DNA is behaves as the transforming principle. So in this way we have to know about some of the information of an DNA. Also, we have to say that DNA may be responsible for synthesis of more of the substances which can be regulate the life processes in our body, that is in our cell or maybe in a nucleus. So in this way, what are the functions of the DNA? There may be DNA which can be carried the two types of the functions. One who called as the heterocatalytic function and another one who called the autocatalytic function. अब हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन क्या है? कैटालिटिक यानी चलाने वाला, फंक्शन कार्य, हेट्रो दूसरों को चलाने के लिए डीएनए खुद वर्कआउट करेगा, खुद रोल प्ले करेगा, खुद फंक्शन प्ले करेगा। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि हियर इन heterocatalytic type of functions, the DNA which can be synthesized, some of the molecules which can be carried for to regulate the chemical reactions, as well as we have to say that the DNA which can be work as for the synthesis of the chemical molecules or biomolecules. So in this way such a function is known as to be the heterocatalytic function. एग्जाम्पल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए फंक्शन आउट कर रहा है, डीएनए वर्क कर रहा है, लेकिन डीएनए वर्क करने के लिए वो खुद के अलावा ऐसा बोल सकते हैं कि खुद के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए वर्क कर रहा है, फंक्शन आउट कर रहा है, और आरएनएस फॉर्मेशन के लिए फंक्शन आउट कर रहा है। तो आरएनएस मतलब क्या है? जहां पर हम आरएनएस के तहत जब डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो देयर में बी फॉर्मेशन ऑफ एन 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द आरएनएस, mRNA, rRNA and tRNA. So in this way DNA may be function and may be synthesize the RNAs, as well as there may be in our body the basic component is the protein, and protein is said to be the building block of our body. So in this way there are several types of the proteins which are used in our body to synthesize each and every characters, each and every organs or maybe the organized chemicals. So उसमें कई सारी प्रोटीन बनाने का काम डीएनए करता है और आरएनएस को बनाने का डीएनए करता है। यानी यहाँ डीएनए खुद के लिए काम नहीं करता, दूसरों को सिंथेसाइज करने के लिए काम करता है। सो कॉल्ड एज हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। ओके, अपोज टू दैट ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। यस, यहाँ पर डीएनए खुद के लिए काम करेगा, खुद को ही बनाएगा। यानी जो एक ओल्ड डीएनए है वो कुछ नई डीएनए को जन्म देगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो पहले से ही क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स और अपने आप में डबलिंग में चले जाते हैं, यानी और क्रोमोसोम्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो
उस सिंथेसिस करने वाली उस प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाता है रेप्लिकेशन. और हियर इज फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए from into a new DNA, so called the DNA replication. So actually autolytic functions means to that the DNA which can be work for itself or DNA which can be synthesized like a DNA itself. खुद ही खुद से खुद के जैसा ही एक नया डीएनए बनाता है. सो उस फंक्शन को, डीएनए की उस फंक्शंस को ऑटोकैटालिटिक फंक्शन कहा जाएगा. एग्जाम्पल डीएनए रेप्लिकेशन. अब यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू हम यही पढ़ने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन. जो व्हाट इज मीन बाय डीएनए रेप्लिकेशन, 1 मार्क के लिए शॉर्ट नोट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन, 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेटिव बेस पर 3 मार्क्स के लिए और डायग्रामेटिक स्केच के साथ 4 मार्क्स के लिए. यहाँ मैंने इतनी सारे डायग्राम निकाले. आपको इतने सारे डायग्राम नहीं निकालना है, आपको सिर्फ यही एक बेसिक डायग्राम शो करनी है. लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरीके से कुछ डायग्राम सेपरेट करके दिया है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे जैसे इस प्रोसेस को समझेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को, तो उस समय किस तरीके से फंक्शन आउट होगा या किस तरीके से प्रोसेस कैरी होगी, उसके लिए ऐसे कुछ पार्ट्स बनाए हैं. सो देन व्हाट इज मीन एज टू बी द डीएनए रेप्लिकेशन. Replica, that is maybe the exact identical copy, is known as to be the replication, the process. So DNA replication is the process in which the DNA which can be synthesized, its exact copies like itself, identical like itself, is called as to be the DNA replication. या shortly हम ऐसे बोलेंगे, there may be the multiplication of an DNA into its multiple copies is known as to be the DNA replication. Okay. ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन क्या है बोल सकते हैं, इसका मीनिंग बोल सकते हैं. ओके. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज वी हैव टू नो दैट देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सेल्स, वन हु कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक cell and another one who called the eukaryotic cell. Prokaryotic cell, that is cell which can be have the primitive type of the nucleus, is in the form of nucleoid. And the eukaryotic cell, the cell which can be have the presence of a true nucleus, well developed nucleus. Okay. So in this way there may be a difference. So DNA replication basically in our syllabus we have to study it in eukaryotes. And in eukaryotes our syllabus issues is based on a semi-conservative DNA replication or the may be called as semi-conservative mode of DNA replication. हमारे इस सिलेबस में हम यूकैरियोट्स का एक्सप्लेनेटिव बेस पर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं. बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर मे बी रेप्लिकेशन इज अगेन 2 टाइप्स ऑफ, वन हु कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव एंड अनदर वन हु कॉल्ड द कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. In semi-conservative replication, half of the part of the old DNA and half of the part of the new DNA. That is, one daughter DNA always be a double-stranded. From double-stranded DNA, the one DNA strand is to be the old from the parent, and one who DNA from just newly synthesized. That is new strand. But conservative DNA, there may be after formation of the 2 daughter DNAs. Old strands are to be again match their pairings, complementary base pairings, and may be forming old DNA as it is, and the 2 newly synthesized strands are to be converted into a new completely new conserved synthesized strand. So in this way both are to be shown as to be the 100% conservation of one who parental DNA and one who newly synthesized DNA. So in this way there may be 2 types of the replication, one who called the conservative mode of replication and another one who called the semi-conservative mode of replication. So here we have to detailed studied is about the semi-conservative DNA replication. Such a semi-conservative DNA replication or DNA simply replication or simply DNA replication or the replication when it is going on and where. When it is going on or where. When
there may be going on to start the cell cycle as the interphase. In interphase carried into three phases, G1 phase, S phase and G2 phase. So during S phase, there may be, S is called as the synthesis of the DNA. Yes, at that time there may be going on to DNA replication. And where that is here in cell cytoplasm inside the nucleoplasm inside the nucleus. सेल की साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन किया जाता है. सो देन वी हैव टू स्टार्टेड एज द प्रोसेस such a process of an DNA replication which can be completed into the 7 events or the 7 points. Here first is activation of nucleotides, second point of origin and the initiation point, third unwinding of the DNA molecules, fourth is replication fork, next is synthesis of new strands on template, next is leading and lagging strand, formation of finally the formation of daughter DNA. So in this way there are 7 issues and 7 events or 7 steps says that how to conclude or how to complete the process of the DNA replication. So in a first step or the first event, activation of the nucleotides. Yes, in a nucleoplasm there may be first synthesize the 4 basic types of nucleotides. Such a nucleotides is called as to be the adenine, guanine, cytosine, thymine. Adenine and guanine are the purine base of the nucleotides, and cytosine and thymine are the pyrimidine base of the nucleotides. Adenine and guanine is a double ring structure and cytosine and thymine is a single ring structure. यानी एडेनाइन और गुआनिन ये अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है जिन्हें प्यूरिन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है. साइटोसिन एंड थाइमिन पिरिमिडिन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है. यानी दोनों में अंतर है, दोनों 2 प्रकार के हैं. जो प्यूरिन टाइप के हैं वो 2 एडेनाइन गुआनिन है और पिरिमिडिन टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स है साइटोसिन एंड थाइमिन है. ओके, सो आफ्टर दैट तो यहाँ पर 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, बन के रेडी हो जाते हैं. तो जब जिस समय में ये बन के रेडी होते हैं उस समय में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि जस्ट बन के रेडी है, लेकिन वो अपनी जगह से जिस समय इन्हें ले जाके यहाँ पर जिस तरीके से अपने एक सीक्वेंस में यहाँ जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के लिए इन्हें खुद एक्टिव रहना होगा, खुद ब खुद उस प्रोसेस में जुड़ने के लिए खुद एक्टिवेटली पार्टिसिपेट करना होगा, उनसे कनेक्ट होने के लिए खुद जाना होगा. तो उस समय में ये एक्टिव फॉर्म में होने चाहिए. तो पहले जब जिस समय में बन के रेडी हो रहे होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो उस समय इनएक्टिव फॉर्म में होते. तो जिस समय ये बनते उस समय में इस नाम से होते: DAMP, DGMP, DCMP, DTMP. D refer to the deoxyribonucleotide, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये डीएनए को बनाने जा रहे हैं, इस वजह से ये डीऑक्सीराइबो फॉर्म में है. सो इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. एडेनिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ है, तो ये एडेनाइन मोनोफॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है. वैसे यहाँ पर ये गुआनिन मोनोफॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है और फिर से ये साइटोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ है या थाइमिन मोनोफॉस्फेट के साथ है. तो इनिशियली जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इन्हें कहा जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड गुआनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड थाइमिन मोनोफॉस्फेट. अब जब ये एक्टिव फॉर्म में खुद को कन्वर्ट करते उस समय में एक्टिव यानी हैव एन एनर्जी, तो वो अपने आप में एनर्जाइज होते. तो एनर्जी लेने के लिए, एनर्जाइज होने के लिए हमें पता है देयर में बी यूज एज द एनर्जी मॉलिक्यूल नेम्ड एज द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. हर कोई यहाँ जो 4 टाइप्स के बने हुए हैं वो अपने आप में एटीपी को खुद के साथ गेन करते हैं. जब खुद के साथ गेन करते हैं तो मोनोफॉस्फेट और ये ट्राइफॉस्फेट, ये टेट्राफॉस्फेट हो जाएगा. तो टेट्राफॉस्फेट नहीं चाहिए एनर्जाइज के लिए, ट्राइफॉस्फेट ही नेसेसरी. इस वजह से इस तरह से ये
फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हुए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देते, छोड़ देते, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते तो वो फिर से उधर एटीपी बनाने के लिए जुड़ जाते इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब ये एनर्जाइज होते और इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते उस समय में एटीपी को इस्तेमाल करते हैं, और यही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एएमपी अब बन जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एडेनिन एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल उसी तरीके से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थायमिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, यानी जिस समय में भी इसे लिया जाएगा उस समय में ये खुद होके पार्टिसिपेट करेंगे और एक नई स्ट्रैंड बनाने के लिए अपनी कॉम्प्लीमेशन में एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एक कतार में जुड़ना शुरू करेंगे। सेकेंड इवेंट और सेकेंड स्टेप है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट क्या है? तो मे भी बेसिकली हमें पता है कि हमारी न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम इनिशियली इस तरीके से नजर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एन वैटसन एंड क्रिक एज अ साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, which can be discovered that our DNA molecule or a chromosome which can be itself have a double stranded structure and a double helical structure, यानी इस तरीके से लूप में होते हैं, इस तरीके से खुद को जब ट्विस्ट मैनर में वो लपेटना शुरू करते हैं तो वो हेलिकल माना जाता है, और अपने आप में ये एक क्रोमोसोम, एक डीएनए मॉलिक्यूल दो स्ट्रैंडेड का, दो धागों का होता है। तो इस तरीके से ये इनिशियली नजर आते हैं। पर जिस समय में ये डीएनए अपने आप से और नए डीएनए को जन्म देना चाहता है, या फिर एक डीएनए अपने आप से डबल डीएनए बनाना चाहता है, एक क्रोमोसोम दो को जन्म देते हैं, दो क्रोमोसोम चार को कन्वर्ट करते हैं। हम सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली एक सेल में अगर मान लो हमारे ही बॉडी की सेल की बात करते हैं तो हमारी बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो 46 क्रोमोसोम जब अपने आप में डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में तो 23 बट जाते हैं, पर 23 इज द जस्ट हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये सफिशिएंट नहीं है साइटोप्लाज्म की पूरी सेल एक्टिविटी रन करने के लिए। पूरी सेल एक्टिविटी रन करने के लिए नॉर्मली ह्यूमन में 46 ही क्रोमोसोम चाहिए। तो 23 फिर से अपने आप में डबलिंग में चले जाते हैं, अपने आप में डबल क्रोमोसोम बनाते हैं, 46 फिर से बनाते हैं। तो उसके लिए उस समय में क्या किया जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। और किस समय? एस फेज ऑफ इंटरफेस इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बिल्कुल उस समय में इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंडेड का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए होता है। जिस समय में इसे अपने डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनानी होती है तो उस समय अपने आप में इसका जो एक बॉन्डिंग पैटर्न होता है इस तरीके से एटीसीजी हमने यहाँ लिखवाया है। कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग में होते हैं एटी एंड सीजी। जी हुआ तो सी रहेगा, टी हुआ तो ए रहेगा। तो मे भी कंसिडरेशन में हमने कहा है कि प्यूरिन्स वाले कौन होते हैं? एडोनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन्स वाले कौन होते हैं? साइटोसिन एंड थायमिन। तो कभी भी गलती से पेयरिंग ए पेयर्ड विथ जी या फिर सी पेयर्ड विथ टी ऐसा नहीं बनता, क्योंकि एडेनिन एंड गुआनिन एक ही टाइप के होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन एक ही टाइप के होते हैं। तो हमेशा अपोजिट में वो अपनी पेयरिंग बनाते, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो हमेशा ही ए पेयर्ड करेगा टी के साथ और सी पेयर्ड करेगा जी के साथ। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि ये ऑलवेज बी पेयर्ड विथ टी और मे बी कंसिडरेशन में सी ऑलवेज